डिग्री की बात करूं, सो आई एम अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय डिग्री. Okay. Right. So while taking my education, I used to represent various international और national level में मैंने अपने research articles, review articles represent किए. I worked on my skills. मैंने negative feedbacks को भी positively लिया and I thought कि ये जो negativity बोल रहे हैं लोग वो actually मेरी success के लिए बोल रहे हैं. पर known लोग होंगे maybe. Okay. And they knew that place from their childhood. So that is why they took that courage to send me to entirely a different and a new place. They think a lot. अच्छा. Right. Overthinking करती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, we should always actually emphasize on the positives. Correct. नमस्कार दोस्तों. Welcome to another episode of वाह वुमन. आज मैं आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने वाला हूँ जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन. आइए सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी. लेट्स वेलकम कृतिका त्रिपाठी जी. वेलकम टू कृतिका जी. थैंक यू कपिल जी फॉर इनवाइटिंग मी टू योर such a nice channel, such a nice initiative that you have started. Thank you so much. Thank you so much. करना चाहूँगा कि आपका करियर अभी तक शुरू कैसे हुआ? Like how did you started your career in terms of like ये आपका बैकग्राउंड क्या रहा है अभी तक? Okay. अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूँ, so I am a biotechnologist by degree. Okay. Right. So while taking my education, I used to represent various international और national level में मैंने अपने research articles, review articles represent किए. Then classroom में भी हम लोग presentations वगैरह देते हैं. So I was very good at it, almost the best student in the class. So somewhere or the other, I found out कि I'm a very good speaker. Oh, very good. Maybe. Fantastic. So my presentation skills are very nice. So from there, I got an opportunity to work with an organization जो personality development field में काम करती थी. And I worked very hard on my skills, and I got an opportunity to. So when did you started your first job, Kritika ji? So it was way back in 2015 January. Okay. When I started my career in this field, and slowly and gradually little steps लिए, baby steps लिए, and I worked on my skills. मैंने negative feedbacks को भी positively लिया and I thought कि ये जो negativity बोल रहे हैं लोग वो actually मेरी success के लिए बोल रहे हैं. Oh, fantastic. Before we move forward, मैं कृतिका जी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा. She is into personality development of children as well as adults, if I'm not wrong. Yeah. And she's a trainer by profession. So let's hear it from her itself. Sorry for interrupting because ये question दिमाग में आया था. So कृतिका जी, जब आपने जॉब शुरू किया तो you were there as a trainer in which place was it? It was a very, I don't know whether many people have heard this name or not. It is near Nainital because Nainital is famous. Nainital, yes. So नैनीताल के पास एक छोटी सी जगह थी, वहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. I was born and brought up in Lucknow. I took my masters from NCR, and then going to that small place to start my career, like job, it was a very different experience. I did not had that positivity from everyone कि बड़े शहर को छोड़ के छोटे शहर में क्यों जा रही हो. So ये आपका लखनऊ, born and brought up in Lucknow, and then you went to Haldwani, you told that, and then NCR. So ये hopping कैसे रहा आपका? जो रूट्स है ना, होम टाउन तो मेरा लखनऊ है, आई वुड से. जो मेरे रूट्स हैं, दे आर फ्रॉम उत्तराखंड. ओके. सो पेरेंट्स ने नई जगह पर, छोटी जगह पर या नई जगह पर कह लीजिए, वो इसलिए भी भेजा कि वहाँ पर नोन लोग होंगे मे बी, एंड दे न्यू दैट प्लेस फ्रॉम देयर चाइल्डहुड. So that is why they took that courage to send me to entirely a different and a new place. So yes, I'm thankful to them for believing in me actually. So वहाँ से मेरी journey start हुई. Yeah. So your first job was in Haldwani, right? Yeah. Correct. So there as a trainer only? And there as a trainer, slowly and gradually, फिर वो वहाँ coordinator बनी हुए हैं. Then वहाँ as I was when I left the job after 4 point some years in that organization, I was the head administrator there. Fantastic. Along with the trainer. Fantastic. So I learned many things from there. Yeah. Okay. So thereafter what happened? Like you after quitting your job, you came to NCR now? Yeah. Actually I took the maternity leave. Okay. Right. So I was on maternity leave. Then COVID happened. Oh. By God's grace, COVID happened, and we were also
hit by this virus in the first wave Absolutely. itself. Absolutely. My daughter was very young at that time. So जब वो कोविड हुआ ना तो सोचने का टाइम मिला, what next? गुड, यू राइटली सेड कृतिका जी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से हमारी डिस्कशन जब होती है तो कोविड ने या पैंडेमिक का जो पीरियड था 2 साल का, उसमें हम लोगों को काफ़ी लोगों को ये जो खाली वक्त था, कुछ लोगों ने तो खा पी के या सोने में बिता दिया या अपना एंजॉयमेंट में बिता दिया, लेकिन आप जैसे लोगों ने उसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज किया कि आप उसको प्रोफेशन में कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं या अपने पैशन को या अपनी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं. इफ आई एम राइट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड फ्रॉम हर. सो देन यू स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट कि व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या. Yes. So that taking care of a child, my husband being a banker, he was supposed to go for the whole day to the office, even because of the during the lockdown as well. So when my daughter used to sit, मैंने वो सोचा कि मैं क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करके जो ये कोविड हिट होगा वहाँ पर क्यों ना मैं आई कम बैक विद अ बैंग. ओके. एंड वो टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा, डॉटर भी बड़ी हो जाएगी, एंड the things are happening actually now. Yeah. So now then after this thinking process during that pandemic, फिर आपने क्या सोचा कि जॉब करना है या बिजनेस करना है? No, फिर मैंने जब when I quit that job, तभी मैंने सोच लिया था कि I'll do in this field only. मैं इसी फील्ड में कुछ करूँगी and I'll पर्सनालिटी डेवलपमेंट में. yes मैंने इसको अपना करियर बना लिया था. I did not have that second thought कि मैं अब ये करूँगी, I'll work in an organization, I'll work as a teacher, I'll work like this. I never thought of all these things. Okay. I thought कि अब क्यों ना कुछ खुद का किया जाए, because I have that skills in me. Correct. I believed in myself. So मैंने वहाँ पर से अपना I jotted down the points. I had a discussion with my partner, जो अभी मेरी partner है, she is my best friend also. Okay. So मैंने उनके साथ डिस्कशन किया और वो तो she was always like supporting me for this. वो पहले भी मुझसे कहती थी come let's start all these things. So हमने अपना proposal all these things हमने ground level में काम किया. एंड देन वी वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि कोविड था, बहुत ज़्यादा स्कूल्स में नहीं गए. हम लोगों ने मेल डालनी शुरू करी स्कूल्स में, जस्ट कोल्ड कॉलिंग. ऑन दैट कोल्ड कॉलिंग एक्चुअली हिट और हमको वहाँ से वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. या बट कृतिका जी, okay, you started your own venture and personality development. You're teaching various students. So during this period, how was your family support as such? Because आज की डेट में you belong to a family where business कभी किसी ने करा नहीं है. yes, no one. Most of the people, I mean, everybody has been into a job or mostly job. So how supportive were your in-laws and how supportive were your parents in this venture? When I talk about the support, तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री के बाद जब मैंने नई फील्ड चूज़ करी थी, देन माई पेरेंट्स वर लिटिल लाइक कि हाँ ये क्यों कर रही है, वाई इजंट शी गोइंग फॉर PhD और समथिंग लाइक दैट, नेट क्वालिफाई क्यों नहीं करे. बट देन दे लाइक बिलीव्ड इन मी बिकॉज देयर सपोर्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम. राइट. सो उस टाइम पे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड टाइम टू टाइम मेरे को रिकग्निशन उस शहर में मिलने लगी. एंड व्हेन दे यूज्ड टू कम एंड जब हम कहीं जाते थे ना, तो स्टूडेंट्स मिलते थे, प्रिंसिपल मिलेंगी कहीं की, कोई मिलता था, तो दे यूज्ड टू फील गुड कि हाँ ये कुछ कर रही है एक्चुअली. अदरवाइज बहुत से लोग ऐसे सोचते थे कि ये NGO में काम कर रही है शायद. तो थोड़ा प्राउड भी फील होता होगा पेरेंट्स को यार कि माय डॉटर इज डूइंग समथिंग, है ना? यस, आई फील प्राउड मोमेंट जो मेरे लिए भी था एंड माय पेरेंट्स फेल्ट प्राउड. इट वाज द मोमेंट व्हेन मेरी मैरिज भी देन इट हैपेंड इन हल्द्वानी ओनली. सो वहाँ पर जितने भी स्कूल्स के लोग थे, ऑल दी ओनर्स, ऑल दी प्रिंसिपल्स, जो आसपास की जगह के भी जहाँ जिन जिन स्कूल्स में जाती थी, एवरीवन केम टू द मैरिज ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी दैट वाज गिविंग देम द trainings. So they felt proud and actually that was the turning point. I felt it was the turning point. I feel कि वहाँ से मुझे वो confidence आया कि मैं एक employee हूँ एक कंपनी की और मुझे कोई ओनर्स मुझे मेरी मैरिज में आया. दैट मीन्स आई हैव इट इन माई सेल्फ. करेक्ट. मीन्स मेरे अंदर वो स्पार्क है कि मैं अपना भी शायद कभी कुछ खड़ा कर सकती हूँ. सो आप जब यहाँ ही तब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं यहाँ के कुछ अपना करना चाहती हूँ. यस. सो देन यू स्टार्टेड ऑफ. यस, यस. पेरेंट्स सपोर्ट एंड इन-लॉ सपोर्ट. पेरेंट्स सपोर्ट, माय सिस्टर्स सपोर्टेड अ लॉट. ओके. राइट. माय हस्बैंड सपोर्टेड अ लॉट. लाइक ही इज स्टिल सपोर्टिंग. लाइक ही हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर प्लेस एंड ही नेवर सेड आस्क मी टू कम टू दैट प्लेस. इट्स अगेन अ स्मॉल टाउन. सो उन्होंने वहाँ कभी नहीं कहा कि वहाँ आओ और घर में बैठो और टेक केयर ऑफ माय डॉटर. Correct. So he did not ask me to do that.
right? So he's supporting right now also. My sisters are very very supportive. Like मेरे in every step of my life I feel my sisters are there behind my back. मेरे M.Tech के टाइम पे भी I felt my sisters were there to support कि हाँ तुमको M.Tech करना चाहिए. So that is why I did my M.Tech. That is why I jumped into this field, and because of their support also, parents भी जब थोड़े negative होते हैं ना, they are the ones correct to correct them. So sisters का support बहुत ज़्यादा था. Then my husband and yes of course my in-laws, they are very very supportive. Wow. They are very very supportive, I must say. Wow. Otherwise daughter-in-law के लिए बिजनेस खड़ा करो. every in-laws, every person, father-in-law, mother-in-law हमेशा ये चाहते हैं कि शादी हो गई है बेटे की तो शायद बहू साथ में रहे, right? बच्चा संभाले, घर देखे. yes they are also working, so but they want me to do something, and they have this, my mother-in-law especially, they have this in mind, if she is working hard then why not to give her time. What a beautiful thinking. Yeah. That's fantastic. That's a very positive approach. Yeah. In fact, आजकल family support कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, लेकिन इनके केस में family support बहुत ही अच्छा रहा है. So after this family support and you're venturing into this business, how long it has been like you have into personality development now? Personality अगर मैं अपना 2015 business point of view से I'll say it is more than 1.5 years now. Okay. Right. When this idea came to our mind, it was in the first wave 2020. Then we worked till last year, we got our first contract. Then अब हमारा contract चल रहा है and we are doing good in terms of business. That's fantastic. So कृतिका जी, मैं आपसे एक बहुत ही छोटा सवाल पूछूंगा, लेकिन उसका आंसर थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, मुझे मालूम है. वो सवाल ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है आप क्या क्या सिखाती हैं, बिकॉज ये हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्चुअली चीज़ है क्या, जो इन्होंने इनके अंदर एक नेचुरल एक चीज़ है, एक पर्सनालिटी इन्होंने ऑब्जर्वेशन या जो भी इन्होंने सीखा, खुद से सीखा है, पढ़ के रिसर्च करके. सो एग्जैक्टली आप करती क्या है, लाइक हाउ डू यू, I mean, आप समझ गई होंगी मेरा क्वेश्चन, क्योंकि मैं शायद people do not know actually much about it, right? Okay. Personality development अगर हम स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हैं, और पेरेंट्स को भी, डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, एवरीवन जिसके अराउंड एक स्टूडेंट की लाइफ रिवॉल्व करती है. ओके. राइट. जो स्टूडेंट है उसकी होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट, राइट. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो टीचर्स एकेडमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा करती हैं, राइट. मैं शायद उनको बच्चों को साइंस, मैथ्स, इंग्लिश ये सब चीज़ें नहीं सिखा सकती हूँ, बट आई कैन वर्क ऑन द कॉन्फिडेंस. जो बच्चा, आई हैव दिस थॉट इन माई माइंड कि जो बच्चा कभी नहीं बोलता है ना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बोलता है या उसके अंदर आइडियाज़ नहीं है. करेक्ट. सो उसके कॉन्फिडेंस को हमें बूस्ट अप करना है सो दैट वो अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करे. आई ऑल्सो वर्क ऑन द कम्युनिकेशन स्किल्स. बहुत बेसिक चीज़ों पर हम काम करते हैं. देन सॉफ्ट स्किल्स, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इट्स अ वास्ट फील्ड. सो हम बहुत सी चीज़ों पर अलग अलग टाइम पे बच्चों के काम करते हैं. आइडिएशन, क्रिएटिविटी, लाइक इन सब चीज़ों पर हम बच्चों के काम करते हैं एक्चुअली. सो इसमें कोई एज कैटेगरी डिफाइंड है स्टूडेंट्स के लिए, लाइक कौन सी एज से शुरू करना चाहिए और कौन सी एज तक एंड करना? पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो खैर हमारे लिए भी है, हाँ, exactly. कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन स्टार्टिंग एज से, स्टार्टिंग एज आई स्टार्ट फ्रॉम year 5-6 I feel it like find it good. और जितना जल्दी हम शुरू कर दें, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट मेरे 2.5 years की डॉटर है, तो मैं उसके साथ भी कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ घर पर. ओके. राइट. कि हम एक्टिविटी बेस्ड, अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम उसको एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर दें. एंड आई डू नॉट प्रेशराइज हर फॉर स्टडीज़. हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है rather than फॉर हर मेंटल. अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो हम उसको एक्टिविटी में कैसे कन्वर्ट कर दें. एंड आई डू नॉट प्रेशराइज हर फॉर स्टडीज़. हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है rather than फॉर हर मेंटल एंड क्रिएटिव डेवलपमेंट. डेवलपमेंट. सो rather than focusing on के उसको पढ़ाई के लिए प्रेशर ना नो डाउट एकेडमिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यस, एब्सोल्युटली. यस, एकेडमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. आपकी डॉटर से मेरे को एक सवाल याद आया कि सवाल निकला इनफैक्ट कि आपकी 2.5 साल की डॉटर है. How do you manage your home affairs? And फिर आपने कहा कि आपके clients outstation के हैं, and traveling she has to do, and then एक kid भी 2.5 साल की बच्ची है, वो भी manage करना, घर भी देखना. Is it easy or is it difficult?
I do not find anything to be very difficult actually. जब आप कुछ because I'm sorry I'm interrupting you because there are certain Yes. ladies who Yes. have this issue कि मुझे Yes. कुछ करना चाह रही हूँ लेकिन मेरी बच्ची छोटी है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ. एक्चुअली जब आप कुछ करना चाहते हो ना तो कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है. Okay. You get those things yourself. Okay. So how do you manage then? I started when my daughter was not 1 year old also. Okay. वो तब मैंने काम करना शुरू किया था अपने स्क्रिप्ट प्रपोजल्स और सेशंस में. मैंने जो पहला आउट स्टेशन दिया था तब मेरी डॉटर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर या 1 ईयर 2-3 मंथ्स इस टाइम की थी. आई ट्रैवल्ड, नो डाउट हस्बैंड का सपोर्ट था, माई सिस्टर लिव्स इन द सेम सोसाइटी तो वहाँ उसका सपोर्ट भी था. Absolutely. देन शाहरुख खान का वही डायलॉग कि पूरी कायनात आपको मिलाने में मिला देती है. सो बाय गॉड ग्रेस आई गॉट अ वेरी गुड मेड ऑल्सो. Okay. से शी इज ट्रस्टवर्दी. ऐसी भी मेड्स आई मेरे पास जो ट्रस्टवर्दी नहीं थी, जिनके साथ मुझे छोड़ने में शायद डर भी लगता था और अभी भी उसके साथ भी छोड़ने में मुझे डर लगता है. राइट, बट आई रियली वांट टू डू समथिंग. सो सारी चीज़ें हो जाती हैं. राइट, एट टाइम्स देयर आर थिंग्स कि शी व्हेन आई कम बैक शी क्राइज. राइट, सो होता है बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम. क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर के कहेंगे ना प्राउडली कि मेरी मम्मा इज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस. ये आंसर उन लेडीज के लिए है जो कहती हैं कि मेरे घर पे छोटा बच्चा है कि मैं काम नहीं कर सकती. आप कर सकती हैं अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो. Exactly. और आप डेफिनेटली कर सकती हैं. सो एट द एंड ऑफ दिस डिस्कशन कृतिका जी, मैं आपसे एक सवाल आखिरी में पूछना चाहूँगा. आप उन महिलाओं को, उन लेडीज़ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आज घर पे बैठी हैं या जो आपके रिलेटेड फील्ड से ही ज्वाइन करना चाहती हैं या कुछ भी वो करना चाहती हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? द थिंग दैट लेडीज दीज डेज डू ना, दे थिंक अ लॉट. अच्छा, राइट, ओवर थिंकिंग करती हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, वी शुड ऑलवेज एक्चुअली एम्फसाइज ऑन द पॉजिटिव्स. करेक्ट. हम नेगेटिव क्यों करें कि अगर हम ये करेंगे तो हमारा फैमिली लाइफ इंडर होगा, हम अगर ये करेंगे तो मेरे हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है. आप उसको स्टार्ट तो करो. एंड व्हेन योर हस्बैंड एंड योर फैमिली विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, ऑब्वियसली दे विल बिकम सपोर्टिव. अभी वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं. राइट, दे एंड वही एक्चुअली कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड नहीं कर रहा है. आप उसको टेक बेबी स्टेप्स. आप बेबी स्टेप्स लो, एक सक्सेस मिलेगी, दूसरी सक्सेस मिलेगी, फिर आपको वो सक्सेसफुल होने की चाह हो जाएगी कि अगर मैं इतने में कर सकती हूँ, व्हाई कांट आई डू दैट. राइट, सो वो हस्बैंड भी फिर सपोर्टिव हो जाता है. एब्सोल्युटली. राइट, सो दीज आर द थिंग्स. आपको बेबी स्टेप्स लेने हैं एंड नेगेटिविटी से दूर रहना है. अगर आप अपने बिजनेस को, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आप अगर पहले से ही सक्सेसफुल देखते हो ना, तो आपको टाइम भी खुद मिल जाता है, लोग सपोर्टिव भी हो जाते हैं. एवरीथिंग हैपेंस. दैट्स अ वंडरफुल मैसेज. सो दीज वर द इनपुट्स फ्रॉम कृतिका जी. बहुत ही अच्छे इनपुट्स दिए जो कि बहुत लर्निंग है हम सब के लिए और आप लोगों के लिए. आप जो लेडीज़ घर पे बैठी हैं, इनफैक्ट जेंट्स भी, अगर आप भी कुछ घर पे कुछ बैठ के कुछ अपना पैशन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए. उसको रोकिए मत, क्योंकि जितना अंदर दबाएंगे ना, आपको अंदर से दुखी होगा. निकाल फेंकिए बाहर और कुछ बाहर निकल के करिए. सो थैंक यू सो मच कृतिका जी फॉर कमिंग ऑन द शो. It was really wonderful talking to you and great inputs from you. It is my privilege to come to get interviewed by you. Thank you so much, Kapil ji, for giving me this opportunity. My pleasure, Kritika ji. So guys, thank you so much for watching Wow Woman, and please do not forget to like, share and subscribe to the channel. फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसी महिला के साथ, और तब तक के लिए शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिएगा. Thank you so much. Love you all. Bye-bye. Thank you.